Hi students, welcome back. So today's video I'm going to cover the numericals on the pulley part. So I request all of you, before you start seeing this video, you all go back and see the videos that I have covered on all the pulleys, single fixed, single movable and the block and tackle system. So once you all are done with that, then only this video will be much more useful to you all. And also a small disclaimer that this video will be a little bit longer than the usual ones, because I'm going to cover all the numericals below the exercise, that is below the chapter. So here exercise 3B part will be covered in this, and I'll be covering each and every numerical. So अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबा है तो you can forward it and to whichever numericals you all want. So I'll be covering it from the Selena textbook. 2020 वाला वर्जन है मेरे पास. The new one I don't have, but don't worry, the numericals that we will cover, they all will be of the same type. Okay. Sorry. So you all can start textbook open करके रखना dears. Exercise 3B of the pulley part. The first numerical I'll read and we will start with solving. A woman draws water from a well using a fixed pulley. The mass of the bucket and the water together is 6 kg. Okay. The force applied by the woman is 70 Newton. Calculate the mechanical advantage. Take G as 10. So it's a very simple question here. So first we will have a mechanical advantage we want to find out. So mechanical advantage formula, we all know it is nothing but load upon effort. But we need to identify in this particular numerical which one is load and which one is effort. But obviously, if you all can see, the woman is drawing water from the well using a fixed pulley. Okay. And the mass of bucket and water both together is 6 kg. So there the mass is given. So you will have to convert it into Newton first. So let's begin with the numerical quickly. So here we are covering exercise 3B. Again, I will mention first question. So load is equals to 6 kg. So we will convert this by multiplying. We get 60 Newton. Okay. And effort has been given to us. So effort is equals to 70 Newton. Okay. So mechanical advantage, simple formula, MA is load upon effort. Okay. Load कितना है? 60 upon 70. Okay, so this comes out around 0.857. There will be no any unit to this because it's a ratio of similar quantities. Okay, let's get on with the second numerical. I'll read the question. A fixed pulley is driven by a 100 kg mass falling at a rate of 8 meter in 4 seconds. It lifts a load of 75 kgf. Calculate the power input to the pulley, taking the force of gravity on 1 kg as 10 Newton, efficiency of the pulley and height to which it is raised in 4 seconds. Now in this question, first let us understand what is the load and what is the effort. Okay. See, in the starting part only they have said it is driven by 100 kg. Okay. And end part में क्या बोला है? It is lifting a load of 75 kgf. So driven by will become what? Effort. Okay. And it lifts a load. तो सीधी सी बात है, that is nothing but the load over here. Okay, so let's write the given data over here. Second question, mass is equals to 100 kg. So effort becomes my 100 into 10, that is 1000 Newton. Displacement of effort कितना हुआ? 8 meter in a time of 4 seconds. Okay, and load भी दिया है 75 kgf. तो वो 75 kgf. इसको अगर हमें न्यूटन में रखना है तो it becomes 750 न्यूटन. Of course we will need it later, not now. तो अभी देखो पावर इनपुट बोला है, करेक्ट. सो पावर का फॉर्मूला क्या है डियर्स? पावर इज नथिंग बट वर्क डन sorry upon time. Okay, so now here work done. So the work done is nothing but force into displacement upon time. तो यहाँ पे हम ये फोर्स कौन सा वाला लेंगे? एफर्ट वाला या लोड वाला? बट ऑब्वियसली वी विल टेक द एफर्ट वन. व्हाई? बिकॉज वट एवर विथ एफर्ट आई एम पुलिंग दैट इज माई इनपुट. ओके, सो दिस इज नथिंग बट 1000 into 8 और टाइम है मेरा 4. सो दिस गेट्स कैंसल्ड.
पावर इज 2000 वॉट। तो वॉट में मेरा, सॉरी ये कट हो गया, लाइक दैट। सो पावर इज 2000 वॉट। लेट्स गो अहेड क्विकली। एफिशिएंसी, सेकेंड पार्ट। एफिशिएंसी क्या है? वी ऑल नो आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट और वर्क डन बाय द आउटपुट अपॉन वर्क डन बाय द इनपुट, करेक्ट। सो आउटपुट वर्क, इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, सो अगेन वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। सो आउटपुट पावर में हम लोग लिखेंगे 1000 इंटू 8। ओके, नहीं इसको बहुत डायरेक्ट हो गया ये। दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये, आउटपुट वर्क ना, आउटपुट वर्क में मैं 750 ले लूंगा। ओके, सो हियर आई विल राइट लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड हियर इट विल बिकम एफर्ट इनटू अगेन डिस्प्लेसमेंट बाय द एफर्ट, नहीं ये DL आएगा। ओके, सो ओवर हियर, हाँ, so first of all we will have to find out the output work. Okay, so that is nothing but how much, 750 into 8, ये कितना आ जाएगा मुझे, this comes out to around 6000 joule. Okay, then let us go ahead. Okay, so load, this is, so कितना हो गया, efficiency is 6000 अपॉन एफर्ट, यहां पे कितना आ जाएगा ये 8000, 1000 इंटू 8। सो ऑल दिस गेट्स कैंसल्ड, 6 अपॉन 8 दैट इज 3 अपॉन 4। सो एफिशिएंसी कितना मिला मुझे, 0.75 और 75%। ओके, सो दिस इज द बी पार्ट। अभी देखो सिंगल फिक्स्ड पुली है, करेक्ट, तो यहां से एक्चुअली पता चल ही गया रहेगा। सो व्हेन एफर्ट मूव्स बाय अ डिस्टेंस d, लोड भी कितने डिस्टेंस से मूव होगा, उतने ही डिस्टेंस से मूव होगा, करेक्ट। सो देयरफॉर वी विल राइट अ लाइन ओवर हियर, सी पार्ट, सी। So if DE is 8 meter, therefore DL will be also 8 meters. ये ऐसे लिख दो। So यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, when effort moves by a distance D, the D downwards, the load will also move by a distance D upwards. So therefore DL will be equals to 8 meter. So ये actually यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, तो ठीक है, any which ways कैसे भी ले सकते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। अ सिंगल फिक्स्ड पुली एंड अ मूवेबल पुली, दोनों की बात चल रही है। बोथ आर सेपरेटली यूज्ड, अलग से यूज किया है, टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 kgf टू द सेम हाइट, कंपेयर द एफर्ट्स। ओके, तो दोनों केस वाइज हम लोग लिख लेते हैं। अभी पहला है सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में लिख लेंगे। अच्छा, इन अ सिंगल फिक्स्ड पुली, याद है हम लोगों को, हमने क्या पढ़ा था, जितना लोड होगा उतना ही एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एवरीवन रिमेंबर्स, फिक्स्ड वाला केस, चेंजिंग द डायरेक्शन में, करेक्ट। सो हियर कैन आई से, जितना लोड होगा उतना ही मेरा एफर्ट भी होगा, करेक्ट। सो अच्छा, और दोनों केस में लोड उतना ही है, 50 kgf, करेक्ट। सो अगर यहां पे लोड 50 kgf है, तो मेरा एफर्ट भी कितना आ जाएगा डियर्स, 50 kgf। तो ये ठीक से दिख रहा है, हाँ। तो ये हो गया फिक्स की बात, तो अभी हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं सिंगल मूवेबल के पास, सिंगल मूवेबल पुली। ओके, अभी इसका वैसा नहीं है। सिंगल मूवेबल का वो याद है, हमने डेरिवेशन में एक एंड में हमने एक फाइंड आउट किया था, एक जनरल इक्वेशन फाइंड आउट किया था। एवरीवन रिमेंबर्स, लोड इज n टाइम्स द एफर्ट, करेक्ट। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, लोड इज इक्वल्स टू n टाइम्स द एफर्ट, करेक्ट। अभी यहां पे, और रादर हम इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे एफर्ट
इज इक्वल्स टू लोड अपॉन 2, है ना, बिकॉज देखो यहां पे दिस इज बोथ आर सेपरेटली यूज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 kgf. ओके, sorry for the interruption. Effort will be equals to L by 2. So let us continue now. Okay, so कितना आ जाएगा मुझे, यहाँ पे लोड मेरा 50 है तो 50 अपॉन 2 इज 25 kgf. तो हो गया करेक्ट. तो सारी चीजें मुझे मिल गई. अभी उन्होंने क्या बोला है देखो, कंपेयर देयर एफर्ट्स अप्लाइड. ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ. ओके, सो एफर्ट in this is 25, effort is 50. तो हो गया, ये तो आंसर इधर ही आ गया. So effort in single movable pulley upon effort, नहीं सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं single fixed pulley upon effort of single movable pulley. तो कितना आ जाएगा ये 50 ये वाला upon 25, that is 2 upon 1. सिंपल था ये क्वेश्चन. ओके, यस. अभी अगले वाले पे जाते हैं. अभी देखो, अभी मजा आएगा. ब्लॉक एंड टैकल आ गया. अच्छा, अभी से ब्लॉक एंड टैकल वाले क्वेश्चंस को ध्यान से समझ के लेना डियर्स, बिकॉज ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. देयर विल बी सर्टेन इंस्ट्रक्शंस व्हिच आई विल बी गिविंग यू ऑल, व्हिच कैन बी लाइक डायरेक्टली फॉर द एग्जाम. ओके, एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन ब्लॉक एंड टैकल पे पूछते हैं, तो डोंट मिस इट आउट. अच्छे से समझ के लो. आई थिंक ये 4th वाला तो सिंपल है बहुत ही. इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 3 पुलीज. लोड ऑफ 75 kgf इज रेज्ड विद एन एफर्ट ऑफ 25 kgf. MA फाइंड आउट करो VR एंड एफिशिएंसी. तो आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है. 4th क्वेश्चन, हाउ मेनी पुलीज आर गिवन? वेरी इंपॉर्टेंट दिस इंफॉर्मेशन. N is 3. ओके, लोड कितना है मेरा 75 kgf. And effort is how much dears? Over here 25 kgf. Okay. Okay. So now MA तो इसी से आ जाएगा. MA is equals to load upon effort. तो 75 upon 25. So MA की वैल्यू हो गई मेरी 3. करेक्ट. और नंबर ऑफ पुलीज भी उतने ही है. यस, तो उससे भी वो फाइंड आउट एक्चुअली वैल्यू आ सकती है. एंड वी ऑल नो MA एंड VR का वैल्यू दोनों का भी सेम होता है. सो देयरफॉर VR इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू 3. ओके, ये हो गया. दैट्स इट. फिर एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करेंगे, वो तो हमें पता है. MA अपॉन VR 3 upon 3 that is 1. So efficiency is 100%. तो ये तो अपना आइडियल वाला केस हो गया. ठीक है. यस, दैट्स इट. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4th वन नहीं 4th हो गया, सॉरी. 5th क्वेश्चन. इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम has 5 pulleys. अभी देखो नंबर ऑफ पुलीज बढ़ते जा रहे हैं. इफ एन एफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन इज नीडेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू रेज अ लोड ऑफ 4500 न्यूटन, कैलकुलेट MA VR एंड एफिशिएंसी. ओके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है ये क्वेश्चन, कोई अलग नहीं है. NA is 5, effort is 1000 न्यूटन, लोड इज 4500 न्यूटन्स. तो जल्दी से इसको कर लेते हैं. हाँ, लेकिन नहीं, थोड़ा फर्क आएगा इसमें, बोलता हूं मैं आपको. This is a little bit different than the previous question. देखो, maybe you all only will guess it by the end of the numerical. 4.5 MA की वैल्यू क्या आ गई मुझे? 4.5 आ गई. So VR भी कितना होगा? जितना MA होगा, that is 4.5. Okay. नहीं, सॉरी, ये इस पे मेरा एक गड़बड़ हो गया. Okay, VR will be equal to the number of pulleys. Okay. So कितने हैं number of pulleys? It is 5. तो अभी confusion, don't get confused here. Basically यहाँ पे मैंने वो नहीं बोला, तो शायद से आप confuse हो सकते हो कि सर आपने यहाँ तो directly VR equal to MA ले लिया, लेकिन अगर देखो VR is also equal to the number of pulleys. ये हम देख चुके हैं पहले वाले वीडियोस में. Okay.
सो वी आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस, सो देयरफॉर वी आर की वैल्यू आ गई मुझे 5. ओके, सो क्या दिख रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है? कैन यू ऑल सी? दैट इज द एफिशिएंसी. सो दिस इज नॉट एन आइडियल वाला केस. करेक्ट. सो एफिशिएंसी इज MA अपॉन VR. तो ये MA कितना है मेरा? 4.5 अपॉन 5, तो 0.9. सो मतलब एफिशिएंसी मुझे मिली 90%. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. अच्छा हो गया हमने इसको भी कवर कर लिया. ऑफकोर्स कवर तो हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं. 6th क्वेश्चन. बोर्ड रबिंग में ही मेरा टाइम चला जाता है. आई डोंट लाइक बोर्ड रबिंग. 6th क्वेश्चन. ओके, हाँ भी 6th क्वेश्चन को अगर आप देखो डियर्स, तो एक आपको डायग्राम मिलेगा जिसमें स्ट्रैंड्स नहीं है, स्ट्रिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ 3 पुलीस ऊपर है और 2 पुलीस नीचे है. The pulley that is downward, there is a load connected, and the upper one pulleys, it has been connected to the rigid support. Okay, so what all things are asked? See, in figure 3.32, draw a tackle to lift the load by applying the effort in downward direction. Mark in the diagram the direction of load and effort. Okay, if the load is raised by 1 meter, through what distance will the effort move? मतलब हमें DL दिया है तो DE फाइंड आउट करना है. स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल, वो तो आ ही जाएगा बिकॉज हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पूरा मिल ही जाएगा. एंड फिर फाइनल में पूछा है व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम. अभी देखो ये मैंने वो वाले वीडियोस में भी बोला था, अभी ये वापस रिवाइज हो जाएगा एंड एक्चुअल में हम देखेंगे, करके देखेंगे कि कैसे पुलिस एग्जाम में बनाने हैं. ओके, तो अच्छा हो गया ये क्वेश्चन हम ले कर रहे हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा मुझे, आप लोगों को भी. तो देखो एक हम, आई थिंक ये थोड़ा बड़ा हो गया. ओके, आई थिंक होप इधर इसके ऊपर दिख रहा है सब लोगों को. तो ये रिजिड सपोर्ट है, इसको थोड़ा छोटा लेंगे, इसको उससे भी थोड़ा छोटा लेंगे, फिर ये ऑलमोस्ट इतना ही, फिर ये थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं, फिर ये दोनों को साथ में. इधर आएगा मेरा लोड. आई होप ये क्लियरली दिख रहा है वीडियो में. ओके, फिर यहाँ पे ये ऐसे. आप लोग थोड़ा जगह छोड़ सकते हो, मैंने ये पर्पसली बिकॉज ये इसके ऊपर नहीं जाएगा करके मैंने ये किया है, ये हुक बना दिया, यहाँ पे एक हुक बना दिया. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग आप लोग ये ड्रॉ करके लोगे. सो यू ऑल कैन मे बी यूज योर कंपास or maybe you all have those rounders in which you all can draw those this thing, उससे आप ये राउंड बना सकते हो. ठीक है. फिर देखो हमेशा जो है स्ट्रिंग्स को यहां से चालू करना. ठीक है. तो मैंने जैसे वीडियोस में भी बोला था, क्या था कि यहां से जाएगा, सो इट विल फर्स्ट कम हियर. ओके, फिर ये इधर ड्रॉ करने के इसमें मत जाओ. ओके, जस्ट ऐसे बना के छोड़ दो, तो देन द थिंग्स विल बी कवर्ड अप. फिर यहाँ पे ऐसे आएगा एंड देन फ्रॉम हियर इट विल कम टिल हियर. ओके, फिर यहाँ से इधर चला जाएगा, फिर इसके ऊपर से ऐसे होते हुए नीचे आएगा. मतलब नीचे वाले हुक में वी हैव कनेक्टेड द स्ट्रिंग का दूसरा एंड. ओके, नाउ अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या दिखाना है, वी वॉन्ट टू शो द टेंशंस. तो एक टेंशन यहाँ पे है, ग्रीन चॉक से कर रहा हूं, देखो मैं सब लोग, तो यहाँ सबको आपको टेंशन दिखाना है. सो दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज टी. यहाँ पे भी एक टी बना दो इसको, और यहाँ पे टी. देखो ये थोड़ा इधर खिचड़ी हो गया, मेरे से भी थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, और ये भी थोड़ा टाइट होना चाहिए अच्छे से. ठीक है, एनीवेज नेवर माइंड. फिर यहाँ पे हो गया एफर्ट. एफर्ट हम लोग हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही दिखाएंगे. ओके, सो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली है. सो ये सबको भी कैसे ड्रॉ करना है समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस, ये हमने तभी भी बात किया था. तो आप इतना जब दिखाओगे उसी के बाद आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, एक मिनट,
ये लोड थोड़ा मैंने ठीक से नहीं बनाया, तो यहाँ पे ये लोड आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप थोड़ा सा प्रॉपरली ये बना सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ऑल दीज टेंशंस, शोइंग द टेंशंस, एफर्ट, लोड, रिजिड सपोर्ट। एंड देखो यहाँ पे ये ऐसे ट्राई टू अवॉइड दिस, ओके। आई विल नॉट अभी वापस में बनाने जाऊंगा तो इट विल वेस्ट आवर टाइम, ओके। चलो, तो पहला पार्ट तो हो गया। नाउ इफ लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर, तो वो फाइंड आउट हम कर लेते हैं कि इफ डीएल इज 1 मीटर, डीई कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। नाउ वी नो वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग बट डीई अपॉन डीएल, करेक्ट। फॉर्मूला हमें पता है। सो नाउ कितने पुलीज है, 1 2 3 4 5। सो n इज इक्वल्स टू 5। सो मेरे पास सो n 5 है, मतलब ही VR की वैल्यू 5 हो गई। आर यू ऑल देयर विथ मी? यस। सो VR बिकम्स 5। DE फाइंड आउट करना है मुझे, DL मेरा 1 है, तो DE कितना हो गया, 5 मीटर्स, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इज 5 मीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड बोला है, करेक्ट। सो 1 2 3 4 5। ये कंफ्यूज अक्सर बच्चे हो जाते हैं कि सर ये भी तो है, ये नहीं है, ये कनेक्टेड है, बट हम लोग एफर्ट। सो लोड को ये सारे स्ट्रैंड्स मिलके उठा रहे हैं। कितने स्ट्रैंड्स देखो वापस एक बार, 1 2 3 4 5, ओके। सो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सपोर्टिंग द लोड इज इक्वल्स टू 5, ओके। आखिरी क्या है, वो तो सिंपल है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज तो हम निकाल ही सकते हैं, लोड अपॉन एफर्ट। लोड इज बैलेंस्ड बाय 5 टाइम्स द टेंशन, एफर्ट इज ओनली 1 टाइम टेंशन, दैट इज TT गेट्स कैंसल्ड एंड MA इज इक्वल्स टू 5। तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Let's get on with the 7th question now. 7th question. A pulley system has a velocity ratio 3. Draw a diagram showing the point of the application and direction of load, effort and tension. It lifts a load of 150 Newton by an effort of 60 Newton. Calculate its MA. Is the pulley system ideal? Okay, so वापस it's a very simple question, dears. Let's quickly get on with this. 7th. Velocity ratio दिया है 3. Now when you see if the velocity ratio is given 3, how many number of pulleys will be there? Is nothing but 3 pulleys. Okay. Load कितना दिया है, 150 Newton. Effort is given 60 Newton to me. Anything else? No. क्या find out करना है? Let's see. Calculate its MA. तो MA तो जल्दी से आ जाएगा, load upon effort. So 150 upon 60, correct. So this comes out to around 2.5. So MA is 2.5. Okay. और क्या बोला था? Yeah, they have also said that we have to draw this diagram, no? Okay. Now there are only 3 this thing in this. Okay. 3 pulleys है. Calculated, हाँ, that is okay. So 1 एक बड़ा, एक यहाँ पे छोटा, and this will be of almost same size. यहाँ पे ऊपर rigid support डाल देंगे हम लोग, and here it will be, here we will connect the load, and शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से, okay. देखो ये मेरे से भी गलती हो गया, दिस हैज टू बी completely tight and then this goes like this, from इधर से आके नीचे वाले हुक पे चला जाएगा। तो कैन यू ऑल सी हाउ द मिस्टेक इज हैपनिंग?
इफ यू आर ड्रॉइंग इट फ्री हैंड, नो दिस मिस्टेक हैपन्स. तो अभी मेरे पास तो स्केल वगैरह नहीं है, स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. ओके, ठीक है, दैट्स इट. ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा हो गया है यहाँ पे. यहाँ पे दिस इज एफर्ट, टेंशन, टेंशन, टी एंड टी. ठीक है. एनीथिंग एल्स दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट? यस. व्हाट इज दैट? इज द पुलिस सिस्टम आइडियल? नाउ कैन यू ऑल सी फ्रॉम द MA ओनली वी कैन गेस इट. हाउ मेनी नंबर ऑफ पुलिस आर देयर? 3. करेक्ट. लेकिन हमें MA की वैल्यू 2.5 मिली है, सो वी विल से ओवर हियर नंबर ऑफ पुलिस is 3, okay, but MA is 2.5. Now since MA is less than number of police, it is not an ideal pulley. सबको समझ में आ रहा है ये? यस, ओके. चलते हैं आगे. एट्थ क्वेश्चन में भी वापस वैसा ही है. डायग्राम इज गिवन टू यॉल, ओके, एंड उसमें स्ट्रिंग्स बनाए नहीं है, ओके, जो हमें बनाने हैं. फिगर शोज अ पुली ऑफ शोज अ सिस्टम ऑफ 4 पुलीज, ओके. ये देखो सब लोग. द अपर 2 पुलीज आर फिक्स्ड एंड लोअर आर मूवेबल. ड्रॉ द स्ट्रिंग्स अराउंड द पुलीज, ऑल्सो शो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. वो सारी चीजें तो रिपीटेड है, आई विल नॉट रीड इट अगेन एंड अगेन. VR find out करना है how are the load and effort of the pulley system related to each other and what assumption do you make in arriving at your answer in the part C. Okay, हाँ, वो तो I think friction नहीं होगा, वो सारी चीजें हैं. It is very simple. तो हम पहले पुली वापस बना लेते हैं. So see this dears, एक ये बड़ा होगा, एक ये छोटा, ये वापस छोटा, and this will be उसके जितना ही almost. देन हम लोग ये दोनों को कनेक्ट करेंगे ऐसे, फिर ये दोनों को कनेक्ट करेंगे ऐसे. यहाँ पे जाएगा लोड, ओके. देयर इज अ रिजिड सपोर्ट ओवर हियर जो हम कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे. यस, इधर से शुरू हुआ, इसके ऊपर से यहाँ आएंगे, इट कम्स हियर, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, देन देयर इज अ हुक हियर एंड देयर इज अ हुक हियर. फिर इधर से ये जाएगा ऊपर वाले इसमें. ये थोड़ा गड़बड़ हमेशा होता है, इतना ये स्ट्रेट नहीं होता है. ठीक है, एनीवेज ये भूलना नहीं है. अगर ये टेंशन टी हम लिखना भूल जाएंगे किधर भी, यू ऑल विल लूज योर 1 मार्क. ओके, डोंट फॉरगेट दिस डियर्स. तो मेन हमारा रिजिड सपोर्ट, ये सारे स्ट्रिंग्स एकदम टाइट होने चाहिए. दे हैव टू बी रियली टाइट. ओके, ये समझ लो. मैं बार बार ये चीज को बता रहा हूँ, शायद आपको लगेगा कि ये आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. क्या मतलब है सर, एक ही चीज बार बार बता रहे हो? बिकॉज आई हैव सीन आफ्टर टेलिंग सो मेनी टाइम्स ऑल्सो स्टूडेंट्स डायरेक्टली उसको गोल 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 बना देते हैं, देन इट बिकम्स अननेसेसरी, फिर मार्क्स चले जाते हैं. बाकी सब बराबर होता है. यू नो, दैट इज द रीजन आई एम कीपिंग ऑन अगेन एंड अगेन टेलिंग. ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो? वो तो सिंपल है. VR इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पुलिस, दैट इज 4. सो VR की वैल्यू 4 आ गई मुझे. ठीक है, देन क्या फाइंड आउट करना है? हाउ इज द लोड एंड एफर्ट ऑफ द पुलिस सिस्टम रिलेटेड? दैट इज नथिंग बट बाय MA. सो MA इज लोड अपॉन एफर्ट. ओके, सो MA की वैल्यू, सिंस वी नो अगर ये 4 है तो दिस इज 4, सो लोड इज 4 टाइम्स द एफर्ट. ओके, ये सबको समझ में आया? वापस एक बार देखो, VR की वैल्यू 4 है, ओके, तो MA की वैल्यू भी 4 ही हम लेंगे. और अच्छा, ऑफ कोर्स इसी का मतलब क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट अ आइडियल पुली. ओके, सो L इज 4 टाइम्स E. एंड देन द लास्ट इज व्हाट assumption हैव यू मेड? assumption क्या है? सिंस इट इज एन आइडियल पुली, मतलब
यहाँ पे इसका फ्रिक्शन वगैरह हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं. द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक इज ऑल्सो निग्लिजिबल. एफर्ट विल बी अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो सारे कंडीशंस वापस आ जाएंगे. एंड देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पुली बेयरिंग्स. ऑफ कोर्स दिस इज अ आइडियल केस, नॉट अ रियल वन. 9th क्वेश्चन. फिगर दिया हुआ है वापस. हाँ, फिगर अभी ये वाले फिगर में एवरीथिंग इज गिवन विद द स्ट्रैंड्स एंड एवरीथिंग इज गिवन. फिगर शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलीज. हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल आर सपोर्टिंग द लोड. वापस इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. ओके, तो अगर आप देख सकोगे 4 पुलीज है. आई थिंक यही वाला क्वेश्चन है. ओके, अच्छा हो गया. चलो, हमें वापस यही क्वेश्चन चाहिए था. तो डायग्राम ये दिया हुआ है. गुड गुड गुड, हमको यही डायग्राम चाहिए था. मेरा काम बच गया. ओके, सो क्या बोला है उन्होंने? हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल आर सपोर्टिंग द लोड. इट इज हाउ मेनी ऑफ देम? 1 2 3 4. अच्छा, ये कंफ्यूजन नहीं है ना? पहले वाला डायग्राम जो था इज ऑल्सो द डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 9. ओके, आई थिंक आई विल बी प्रिटी ऑब्वियस. क्लियरली बोलूंगा तो समझ में आता है. या 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं. ड्रॉ द, क्या है, हाउ मेनी स्ट्रैंड्स आर सपोर्टिंग. तो वो तो दिख रहा है 4. सो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सपोर्टिंग द लोड. वापस एक बार देख लो. 1 2 3 4. सो दिस इज 4. देन नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने? ड्रॉ द एरो टू रिप्रेजेंट द टेंशन. हाँ, उन्होंने उसमें एरोज नहीं बनाए हैं. हाँ, यस. तो देन यू विल हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. तो ये डायग्राम हमें वापस बनाना पड़ेगा. एग्जाम पेपर में सॉरी, एग्जाम की जो आंसर शीट होगा उसमें हमें वापस बनाना पड़ेगा. एंड देन वी विल शो ऑल दीज टेंशंस एंड एफर्ट को हम एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे. व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज? वो तो सिंपल है. मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? लोड अपॉन एफर्ट. करेक्ट, लोड अपॉन एफर्ट. लोड है मेरा 4t, ये है t. सो ma की वैल्यू हो गई मेरी 4. ओके, देन उन्होंने क्या बोला है? व्हेन लोड इज पुल्ड अप बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, हाउ फार डज द एफर्ट एंड मूव. ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं. dl इज 1 मीटर. सो de कितना है? सो अभी हमें पता है vr इज de अपॉन dl. VR की वैल्यू हो गई 4. 4 कैसे? नंबर ऑफ पुलिस. ओके, सबको समझ में आ रहा है ना ये? सो VR इज इक्वल्स टू 4. DE मुझे नहीं पता है. DL इज 1. सो DE बिकम्स 4 मीटर. फिर लास्ट क्या पूछा है? हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन. तो वो भी सिंपल ही है. वापस हमें ये फाइंड आउट करना है, एफर्ट फाइंड आउट करना है. वो तो हम इसी से ma वाले फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे. ma का वैल्यू था, ma 4 मिला था मुझे, और लोड कितना है? 100. तो एफर्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. दैट इज 100 अपॉन 4, दैट इज 25 न्यूटन. ओके, तो ये भी सिंपल हो गया क्वेश्चन. अभी 10th क्वेश्चन कर लेते हैं. टेंथ क्वेश्चन में पढ़ता हूं अभी. अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज अ वेलोसिटी रेशियो 3. वापस 3 वाला आ गया, तो सिंपल वाला है. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ सिस्टम इंडिकेटिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ लोड एफर्ट. अ मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf. What is the maximum load he can raise with a pulley system if its efficiency is 60%? देखो अभी efficiency बोला है 60% है. If the effort end moves a distance 60 centimeter, मतलब DE, effort end moves a distance 60 centimeter, what distance does the load end move? DL find out करना है. Okay, जल्दी से start करते हैं. VR 3 दिया है. डायग्राम बना लेते हैं हम लोग. ये थोड़ा बड़ा, ये उससे छोटा छोटा, ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही. ये हुक पहले आएगा और ये ऐसे आएगा.
यहाँ पे आ गया मेरा लोड, फिर इसको रिजिड सपोर्ट पे कनेक्ट कर दो, इधर एक ऐसे आया स्ट्रिंग, फिर एक स्ट्रिंग ऐसे आया, देखो ये भी गलत हो गया मेरे से, दिस हैज टू बी स्ट्रेट एज पॉसिबल, दिस गेट्स कनेक्टेड लाइक दिस एंड ये जाएगा नीचे वाले हुक में। तो ये आप जब बनाओगे ना तो ये थोड़ा सब जगह पे स्केल ही यूज करना, सो दैट ये टेंशन ना रहे, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंशन 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 और ये एफर्ट, ठीक है। थोड़ा हम इसको एस्थेटिक लुक दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या क्या बोला है, लेट अस सी दिस। एफर्ट कितना है, 200 kgf, ओके। लोड कितना है, लोड हैज टू बी फाउंड आउट। एफिशिएंसी 60% मीन्स 0.6 हो गया, ओके। क्या बोला है, DE इज गिवन 60 सेंटीमीटर, तो इसको जल्दी से कन्वर्ट कर लिया, DL कितना है, हो गया। फिर तो सिंपल है, ईटा इज MA अपॉन VR, ओके। सो अगर ईटा इज 0.6, ओके। अच्छा नहीं, पहले फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड, हाँ लोड फाइंड आउट करना है ना, हाँ ठीक है। एंड इफ द एफर्ट एंड मूव्स द डिस्टेंस व्हाट, हाँ वो तो ठीक है। सो पहले हमें MA फाइंड आउट करना पड़ेगा, MA के बिना हम नहीं कर पाएंगे। VR की वैल्यू तो 3 है बिकॉज नंबर ऑफ पुलिस, ओके। सो एक वो भी लिख देते हैं, VR इज 3, दैट इज नंबर ऑफ पुलिस। सो MA इज 3 इंटू 0.6, 1.8, ओके। आई होप सब लोगों ने ये बना लिया रहेगा। सो MA अगर 1.8 मिला तो MA इज लोड अपॉन एफर्ट। हाँ देखो अभी मेरे पास एफर्ट है तो अभी मैं लोड फाइंड आउट कर पाऊंगा। MA की वैल्यू मिल गई 1.8, लोड अपॉन एफर्ट, नहीं एफर्ट दिया है ना, हाँ एफर्ट इज 200, सो लोड इज इक्वल टू 200 इंटू 1.8, तो कितना हो गया ये 360 kgf, ओके। यस, देन नेक्स्ट क्या है, हाँ अभी तो हो गया, VR फाइंड आउट कर लेंगे, नहीं VR से वो ये फाइंड आउट कर लेंगे, VR तो पता है मुझे, DE अपॉन DL, VR कितना है 3, DE दिया है ना, हाँ 60 इंटू 10⁻⁻², DL फाइंड आउट करना है, हो गया ये भी सिंपल है, 60 इंटू 10⁻² अपॉन 3, दैट इज 20 इंटू 10⁻², और DL is 20 सेंटीमीटर, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है डियर्स, ओके। लास्ट क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली वापस मैं बोलूंगा ये स्कोप के बाहर वाला है, बट दिया है तो हमें सॉल्व कर देते हैं। अभी देखो यहां पे यू आर गिवन 4 पुलीज एंड 3 स्ट्रिंग्स, ठीक है, 4 पुली दिए हैं और 3 स्ट्रिंग दिया है, बोला है उन्होंने, ठीक है। तो इसी से हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है, इट इज नॉट अ ब्लॉक एंड टैकल वाला, ओके। ये कॉम्बिनेशन में आता है वो, जहां पे 3 मूवेबल हो गए और 1 फिक्स हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम टू यूज देम सो एज टू ऑब्टेन अ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 8। तो यहां पे उन्होंने बोला है कि मुझे कितना मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, 8, तो वो वाला कौन सा देगा हमें, हमेशा वो कॉम्बिनेशन वाला जहां पे देगा, करेक्ट। कॉम्बिनेशन मतलब मूवेबल एंड फिक्स्ड साथ में, वो वाला, ब्लॉक एंड टैकल वाला नहीं, ओके। इन योर डायग्राम मार्क द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड वो सब, ठीक है, ओके। तो ये तो वो ही है एक्चुअली 11th क्वेश्चन जस्ट डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, ओके। तो पहले तो आ गया मेरा फिक्स्ड पुली, फिर इससे थोड़ा नीचे और दूसरा, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा यहाँ पे, फिर नहीं मेरा गलती हो गया, गड़बड़ हो गया, देखो इसमें इसमें मेरा
गलती हो रहा है थोड़ा। सब लोग देखो जब बनाओगे तो देखो ये ऐसी गलतियां हो सकती है आप लोगों से भी। ये तीसरा वाला ना, and here goes the main load। फिर यहाँ से, हाँ ये एक स्ट्रिंग तो मैं बनाना भूल ही गया। हाँ, इसको थोड़ा पास में ले लेते हैं। ये फिक्स्ड वाला पुली है, यहाँ पे ऐसे डाउन पे, ठीक है। तो ये सारे इसमें एफर्ट मेरा नहीं, सॉरी, टेंशन ऊपर की तरफ, एफर्ट यहाँ आएगा। टी 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 सब जगह पे टी टी दिखा देना, डोंट फॉरगेट। ओके, इधर तक ले लेते हैं, बीच में तक, इधर तक, ठीक है। So MA is 2 to the power n, so 2 to the power 3, 1, 2, 3, okay, where n is what? Number of movable pulleys, okay, movable वाले हैं। So MA की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? 2 to the power 3, 8, okay। So with this हमने एक्सरसाइज तो पूरा कवर कर लिया, okay, जो 3B था, that exercise is covered completely, but एक क्वेश्चन ना सॉल्व्ड में दिया है, सॉल्व्ड क्वेश्चंस में लास्ट पार्ट दिया है, तो वो थोड़ा सा अलग है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। वो भी मैं सॉल्व करूंगा इधर। तो वो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे क्वेश्चन आ गया। तो देखो इसमें क्या बोला है उन्होंने। तो ये अभी हम सॉल्व्ड क्वेश्चन का फोर्थ कर रहे हैं। आई एम राइटिंग इट डाउन ओवर हियर। सॉल्व्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सेलिना टेक्स्ट बुक, फोर्थ न्यूमेरिकल। थोड़ा सा अलग है, इसके लिए इसको सॉल्व कर रहा हूं, बाकी सारे उसके पहले के सिमिलर है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। ब्लॉक एंड टैकल हैज 2 पुलीज इन ईच ब्लॉक, ओके, तो दोनों में 2-2 पुलीज है बोला है। विद टैकल टाइड टू द हुक ऑफ द लोअर ब्लॉक एंड एफर्ट बीइंग अप्लाइड अपवर्ड्स। देखो थोड़ा अलग है इसमें, है ना। हमेशा क्या होता था, एफर्ट इज अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्लॉक एंड टैकल में, बट इन्होंने थोड़ा उसको चेंज कर दिया है। एफर्ट क्या है? एफर्ट इज बीइंग अप्लाइड अपवर्ड्स। सो ड्रॉ अ नीट नेबर डायग्राम टू शो दिस एडवांटेज, टू शो दिस अरेंजमेंट एंड कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। देन वापस वो बोला है, इफ द लोड मूव्स अप अ डिस्टेंस बाय x, बाय व्हाट डिस्टेंस विल द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव अप। तो देखते हैं हम इसको। तो पहले तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो शुरुआत उसी से होगा, एक बड़ा एक छोटा, देन दिस इज स्मॉल एंड दिस इज अ लिटिल बिट बिग, ओके। स्टार्ट उसी से करेंगे हमेशा, रिजिड सपोर्ट बनाना भूलना नहीं है, ओके। अभी सबको याद है हम लोग हमेशा यहां से चालू करते थे, करेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अदर एंड, फ्रॉम दिस साइड, ओके। यहां से ऐसे एफर्ट अप्लाई होगा। तो नीचे आए हैं, अच्छा एक ये मैं भूल ही गया, आई विल कनेक्ट टू कनेक्ट वन लोड ओवर हियर। फिर ये यहां चला जाएगा जितना हो सके। फिर ये ऊपर आ गया, फिर नीचे, दिस विल कम डाउन ओवर हियर, देन फ्रॉम हियर इट विल गो अप। ये देखो ये टच हो गया। ये यही होता है अगर डायामीटर्स आपके सेम बना दोगे तो। इसके लिए मैं बोल रहा था, याद है कि डायामीटर्स हमें अलग अलग रखने हैं। और यहाँ पे एक हुक है, यहाँ पे एक हुक है, तो ये यहाँ नीचे वाले इस हुक में चला गया, ठीक है। और एफर्ट भी ये केस में ऊपर की तरफ है, ओके। तो टेंशन तो है ही यहाँ पे, ओके, सारा ऊपर की तरफ। तो ये हमेशा मेरे से इसको टाइट ही आना चाहिए, नहीं होता है, ठीक है। एनी विच वेज, अंडरस्टूड दिस? यस, ये थोड़ा डिफरेंट है। अभी देखो ड्रॉ द, वो तो हो गया।
क्या बोला है सोल्यूशन में, इफ द लोड मूव्स अप बाय डिस्टेंस, कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, यस। तो वापस देखो, अभी मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितने स्ट्रिंग से बैलेंस है अभी देखो इधर, 1 2 3 4 और 5। ये देख रहे हो क्या सब लोग? सी द फन इन दिस। 1 2 3 4 5, याद है ये ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स में पहले जहां पे 4 ही पुलिस होते थे, लोड वॉज बीइंग बैलेंस्ड बाय 40 था, लेकिन अभी वैसे नहीं है। अभी ये वाला स्ट्रिंग भी इसको बैलेंस कर रहा है। सो लोड क्या आ जाएगा मेरा, 5t अपॉन टी, एंड टी गेट्स कैंसल्ड, एंड एम ए की वैल्यू मुझे मिलेगी 5 ओवर हियर। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, हो गया फिर तो। इफ लोड मूव्स अप अ डिस्टेंस बाय, सो अगर डी एल मेरा x है तो DE कितना आ जाएगा, विल मूव अप अ डिस्टेंस 5x। ये तो सिंपल वही अपना VR वाला फॉर्मूला। तो डियर्स वहां पे एक उन्होंने नोट दिया हुआ है, तो वो नोट को ध्यान से समझ के लो। हियर एफर्ट इज अप्लाइड अपवर्ड्स एंड हेंस इट्स MA एंड VR इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पुलिस यूज्ड। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? देखो ये ऐसा वाला क्वेश्चन है जहां पे MA की वैल्यू और VR लिखना मैं भूल गया ना, सो VR इज इक्वल्स टू 5, लेकिन पुलिस कितने हैं, 1 2 3 4 ही है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है कि हमेशा हम लोग बोलते थे कि VR इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पुलिस, लेकिन यहां पे वैसा तो नहीं लग रहा है। ये क्यों है? बिकॉज एफर्ट ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। is more than the total number of pulleys used and it is equal to the number of strands supporting the load. Yes, so I hope you all understood this video. अगर आपको फिर भी कुछ और questions में कोई doubts वगैरह है तो please comment section में डाल देना. Subscribe to my channel and thank you so much. Bye.